work, power, and energy. We have seen that if we apply force on a body, तो क्या होता है? If you apply force on a body, it may move, it may not move, है ना? कुछ भी possible है. If friction is large enough, then the body might not move, and if the friction is not very large, body may move. So in physics, we define work like this. If we apply force on object and body get displaced, say by displacement S, in a direction not perpendicular to the force, okay? If we apply force on a body and the body get displaced, but not perpendicular to the direction of the body, then we say work has been done. डायग्राम बना लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखो. When force is applied, when force is applied on a body, and it gets displaced, in a direction, not perpendicular to the force, work is said to be done. Numerically, work done equals to the dot product of force and displacement. Numerically, work done equals to the dot product of force and displacement. So work done को W से represent करेंगे. It is dot product of F and S. Dot product क्या होता है? Fs cos theta. So this is the formula for work done. F dot S or Fs cos theta. अगर हमें फोर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है तो F1 I, F2J, F3K. डिस्प्लेसमेंट भी हमें दे रखा है कंपोनेंट के फॉर्म में S1I, S2J, S3K. Then we can find the work done using component also, है ना? तो फिर वर्क डन कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट याद है ना तुम्हें? F1 S1, F2 S2, F3 S3. So we can use this formula for finding the work done. Work is a scalar quantity. हालांकि displacement and vector both are, displacement and force both are vectors, और उनका जो dot product है वो scalar quantity है. So work done is a scalar quantity. What about unit? Unit would be Newton meter, and 1 Newton meter is
1 joule. If a body, so 1 Newton meter is 1 joule. SI unit. एंड 1 डाइन सेंटीमीटर, बिकॉज फोर्स का डाइन भी होता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर, इज 1 अर्ग. तो CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज डाइन सेंटीमीटर. व्हाट अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला? M1 L2 T-2. Dimensional formula for work done is M1 L2 T-2. वन जूल कैसे डिफाइन करोगे? If F is 1 Newton, S is 1 meter, and theta is 0 degree, तो वर्क डन कितना आएगा? FS cos theta 1 into 1 into cos 0. Cos 0 कितना होता है? 1 जूल. Cos 0 is 1. तो यहां से हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं. क्या होगा डेफिनेशन? इफ 1 न्यूटन फोर्स, लिखो, इफ 1 न्यूटन फोर्स, if 1 Newton force displaces, if 1 Newton force displaces a body by 1 meter, by 1 meter in the direction of force, in the direction of force, work done equals to, work done equals to 1 जूल. सिमिलरली तुम 1 अर्ग को भी डिफाइन कर सकते हो. 1 अर्ग में हम क्या करेंगे? फोर्स डाइन में, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में. तो इफ फोर्सेस 1 डाइन, डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर, थीटा इज अगेन 0 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा 1 into 1 into cos 0, विच इज ऑल्सो 1 अर्ग. So that will be definition of 1 अर्ग. If one dyne of force, if one dyne force, if one dyne force displaces, if one dyne force displaces a body by 1 centimeter in the direction of force, in the direction of force, work done is 1 अर्ग. Work done is 1 अर्ग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा? 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर, है ना? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, 10⁵ मीटर को सेंटीमीटर में करो, 10⁻²सेंटीमीटर, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर. तो 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग. So this is a relation between joule and अर्ग. क्या बनन्या, यू लेट?
I was running another class, so बिल्कुल खत्म हो गया. I'm so sorry. अच्छा, we've started work by energy. स्कूल में क्या हो रहा है अभी? आज अपना सारा फीचर्स खत्म करा है. कहाँ तक? सेंटर ऑफ मास. अच्छा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, टू पार्टिकल सिस्टम। हाँ, टिल सेंटर ऑफ मास. कब एग्जाम? सर थर्ड. ठीक है। तो वर्क डन, वर्क इज सेट टू बी डन if a body force is acting on a body, displaces it not perpendicular to the displacement. Work done is dot product of force and displacement, F is cos theta, component फॉर्म में ये होगा, और यूनिट जूल, अर्ग, डायमेंशनल फॉर्मूला दिस। एक क्वेश्चन करो, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन if a force F is equal to 3I plus 2J minus 7K Newton, 3I plus 2J minus 7K Newton displaces a body, displaces a body by S vector, which is 4I plus J plus 5K centimeter. Give your answer in joule as well as erg. Give your answer in joule and erg both. क्या भूल गए तुम डॉट प्रोडक्ट? अभी तो लिखवा है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट याद नहीं है तुम्हें? तो डॉट प्रोडक्ट में आईजे के कहाँ आ गया? अभी तो तुमने टेस्ट दिया था इसका, वेक्टर 3D, उसका वेक्टर का, उसका मोशन 2D का। तो वर्क डन इज एफ डॉट है, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम फिर भी चीटिंग नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है, ऐसा मत करो। हाँ, हार्ड फेल हो जाएगा मेरा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो एस को यू कैन राइट दिस इनटू 10⁻⁻² फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट एस, विच इज 3 × 4 12, 2 × 1 2, -7 plus 5, that is -35 into 10⁻⁻² जूल। कितना आ रहा है सॉल्व करके? -21 into 10⁻⁻² जूल, और -0.21 जूल। ये आ रहा है। हम्म। क्यों? हाँ तो एक ठीक है, तो वही तो मैंने किया, 10⁻⁻² कर दिया। 10⁻⁻² कर दिया ना मैंने इसको। तो बाकी तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। क्या किया मैंने? हाँ तो वही तो है, एक ही तो बात है। तो 0.12 आएगा, 0.02 आएगा, 0.35 आएगा। भाई या तो तुम उसको 10⁻⁻² कर दो, या यहाँ पे लिख दो 0.04, 0.001 एंड 0.05, और फिर मल्टीप्लाई करोगे। डॉट प्रोडक्ट तो तुमने अभी किया है कुछ दिन पहले ही। तो फिर उसमें गलती कैसे होगी? 3 × 4, ये 0.12 आएगा, 2 × 0.01 0.02 आएगा, और ये माइनस होगा 0.35, तो 0.21 आ गया, -0.21। तो 10⁻⁻² को बाहर रखो ना।
फिर उसको कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो? हो गया अनन्या? अरे ऐसा यूनिट में नहीं करोगे वर्क? जब फोर्स न्यूटन में है, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन मत पूछो मेरे से। या तो एसआई में करोगे या सीजीएस में करोगे। तो यू सी दैट वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, है ना? हो गया अनन्या? ठीक है। हो गया अक्षिता? So now you see that work done depends upon the force applied, displacement and the angle between them. दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। अब मान लो अगर थीटा 0 डिग्री होगा, सो व्हाट हैपेंस टू वर्क डन? कॉस जीरो कितना होता है? कब से हुआ है ऐसा? कॉस जीरो 1 होता था पहले तो। साइन जीरो 0 होता है। प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए क्या तुम्हारे? हो गए प्रैक्टिकल? कब है? हाँ तो दिमाग को ठंडा रखो। से घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? बादाम खाओ अक्षय की तरह, 5 सवेरे 5 शाम को, 5 सोने के बाद, 5 उठने के पहले। क्यों अक्षिता, सही है? तो वर्क डन मैक्सिमम होगा जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे। वर्क डन इज मैक्स बिकॉज बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड वर्क डन पॉजिटिव भी होगा। व्हाट इफ थीटा इज 90 डिग्री? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस 90। तब वर्क डन 0 होगा। कॉस, एक चीज याद कर लो, या तो साइन 0 याद कर लो, 0 होता है। तो अगर साइन 0 0 है तो कॉस जीरो 1 होगा। उल्टा हो जाता है सिस्टम। कॉस साइन 0 0 है, ऐसे याद करो। अगर साइन 0 0 है तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। साइन 0 अगर 0 तो साइन 90 1 हो जाएगा। अगर साइन 90 1 है तो फिर कॉस 90 0 हो जाएगा। एक चीज याद करनी है, सिर्फ साइन 0 याद कर लो, बाकी रिवर्स कर दो। तो वर्क डन, कैन यू गिव मी एग्जांपल जब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बॉडी मूव भी कर रही है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, द वर्क डन 0। अगर हम किसी बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस करें यूनिफॉर्म स्पीड से, तो फोर्स नहीं लग रहा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी एट 90 डिग्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स will be at 90 degree to the displacement. जैसे कि we know that earth is revolving around the sun, मोशन तो हो रहा है, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल कितना होता है? 0। बिकॉज एफ एन डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑन द मूविंग अर्थ इज 0, इवन दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली, वर्क डन 0 होगा। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी 0 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 होगा, वर्क डन विल बी 0। अब वर्क डन नेगेटिव कैसे हो सकता है? वी ऑल नो दैट थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? कॉस
कॉस ऑल साइन टैन कॉस, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दो में नेगेटिव होता है। तो अगर थीटा एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 और 80 के बीच में हुआ, तो उस सिचुएशन में वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, सॉरी, वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो जब भी थीटा ऑप्ट्यूस होगा वर्क डन नेगेटिव आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ वर्क डन नेगेटिव का। फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। क्यों? वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव इसलिए होता है बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। वैसे फॉर्मूला लिखें तो वो आएगा एफ एस कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। मैंने बताया था ट्रिगो में, cos n pi is always -1 to the power n। जहां cos +-1 होगा वहां पे साइन कितना होगा? 0। साइन n pi 0 होता है। तो cos 180 is -1। So work done by friction force is negative because friction is always opposite to the displacement। तो वर्क डन की डेफिनेशन पता लग गई, यूनिट पता लग गया, डायमेंशनल फॉर्मूला पता लग गया। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अगर ये हमने किया था जब तक वर्क डन बाई कॉन्स्ट एफ कांस्टेंट था, बट ये भी तो हो सकता है कि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करे, है ना? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फिर क्या होगा? फोर्स वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, इंक्रीज या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में भी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अगर फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो, ये फोर्स है। अब तक जब हमने क्या किया था, हमने कांस्टेंट फोर्स लिया था। तो कांस्टेंट फोर्स अगर लोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है? तो वर्क डन बाय कांस्टेंट, वर्क डन बाय फोर्स बेसिकली गिवन बाय द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। साइड में लिख लो ये एरिया अंडर एफ एस ग्राफ गिव्स वर्क डन। जब भी हम फाइंड करेंगे एरिया अंडर force displacement graph, it will give you work done। So work done by force straight away equal to area under fs graph। तो ये तो कांस्टेंट फोर्स था। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ भी हो सकता है, फोर्स वेरी कर रहा है। यहां से हमने शुरू किया S1 से और उसको हम S2 तक ले गए। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे फोर्स है। तो फोर्स वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया तो निकाल नहीं सकते इसका बिकॉज डिफरेंट शेप आ रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, विल टेक ए वेरी स्मॉल रेक्टेंगल लाइक दिस जिसका थिकनेस है ds एंड दिस हाइट इज f। ठीक है, इसका जो हाइट है वो f है और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो f इंटू डी एस हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। अगर फोर्स की वैल्यू f है और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds हो रहा है तो वर्क डन हो गया एफ डी एस। तो हमने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला, फिर नेक्स्ट के लिए निकाला उसको भी ऐड कर लिया, फिर नेक्स्ट के लिए निकाला उसको भी ऐड कर लिया। यहां से शुरू करके ऐड करते गए हम लोग। हमें दिया होगा फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, S1 S2 दोनों दे रखे होंगे
इनिशियली एस इतना है, फाइनल एस इतना है। तो जब तुम इस तरह से ऐड करते हैं वो होता है नथिंग बट इंटीग्रेशन। बताया था ना इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एडिंग अप। तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। एफ डी एस आ गया, ये एस वन है, ये एस टू है। ये छोटा सा ना डेरिवेशन आ सकता है 2 मार्क या 3 मार्क का। ग्राफ बना देना, ये लिख देना, दैट्स इट। वन का इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू हो जाएगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इंटीग्रेशन तो मालूम है ना सबको, जो बताया था मैंने तुम्हें। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। सो वन का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाता है। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स given as F is equal to 3s square plus 4s plus 2 meter if it displaces a body, if it displaces body from S1 1 meter to S2 3 meter। फोर्स तो जूल में होगा ना। तो फोर्स, वेरिएबल फोर्स तुम्हें दे रखा है 3s² प्लस 4s+2। S1 1 है और S2 3 है। ग्राफ नहीं बनाना, सीधा फॉर्मूला यूज करो। हाँ, हाँ S1 मीटर में ही है। फोर्स तो जूल में होगा। ऐसा मत करो भाई, जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हो तुम लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हो। तो फॉर्मूले में एफ को रिप्लेस कर दिया। अब इसको ओपन कर दो, इंटीग्रेट करो। याद आ गया ना, इंटीग्रेशन किया था किसी जमाने में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेशन व्हेन वी यूज्ड टू राइट एस इन अ फनी मैनर। आ रहा हुआ था ना इंटीग्रेशन। तो 3 बाहर निकाल दिया। S² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एस 1 2 3। 4s⁻1 ds 1 2 3। 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1 ds 1 2 3।
तो एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया s2 + 1/2 + 1, लिमिट्स 1 to 3। s⁻1 का इंटीग्रेशन 1 + 1/2, 1 to 3, और 2 कांस्टेंट था। 1 का इंटीग्रेशन s के रेस्पेक्ट में ऐसा आएगा, ये आ गया। 3 बाहर निकाल दो। अब पहले अपर लिमिट डालोगे, 3³ लोअर लिमिट 1³ s², s की जगह अपर लिमिट, s की जगह लोअर लिमिट। क्या रहे, किलोग्राम? हाँ पूरा बताया करो। 27 - 1, 9 - 1, 2 × 2 26, 16 + 4। तो दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये छोटा सा वो भी वैसे भी स्टेटमेंट टाइप भी आ सकता है, ग्राफ बना के बोल देना, अदरवाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। कर लिया नन्या? फिर 1 मिनट। रिवीजन शुरू कर दो पुराना। और नेक्स्ट वीक न्यूटन लॉ का टेस्ट दे दो। सभी का आ रहा है ना एग्जाम में न्यूटन लॉस? क्यों? तो ये भी तो ट्यूशन में, यहाँ भी तो टेस्ट है। बाकी टेस्ट, तो बाकी टेस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है? कब दोगी फिर? ठीक है। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? लिख लो। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, electric energy, light energy, sound energy, chemical energy. All these are various forms of energy. But we are interested in mechanical energy. What is mechanical energy? नहीं नहीं, वो तो न्यूमेरिकल डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, वो नहीं। मैकेनिकल एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू मैकेनिकल वर्क। लिखो, मैकेनिकल एनर्जी इज एबिलिटी और कैपेसिटी, इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू मैकेनिकल वर्क। Mechanical energy is of two types. Mechanical energy is of two types. Kinetic energy, and the second is potential energy. What is kinetic energy? अरे तुम फॉर्मूला बता रहे हो मुझे, इसकी डेफिनेशन।
यस, लिखो। एनर्जी possessed by a body, energy possessed by a body by virtue of its motion. Energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. तो formula for kinetic energy is half mv square, right? It is always positive. Kinetic energy can never be negative because mass cannot be negative. Velocity, speed का square वो भी negative नहीं हो सकता. It's always positive quantity. What about unit of energy? Same as work done. Joule और अर्ग. डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, m1 L2 T-2. मोमेंटम याद आ रहा है तुम्हें? m into v था. तो कैन वी रिलेट काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंटम? m से मल्टीप्लाई डिवाइड करो राइट साइड में. हाफ एम वी स्क्वायर में मैंने m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m. मोमेंटम एंड मास. इस पे क्वेश्चंस आएंगे. और यू कैन से दैट मोमेंटम इज इक्वल टू √2km. एक क्वेश्चन लिखो. इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी if momentum of a body is increased by 50%. If momentum of a body is increased by 50%, find percentage change find percentage change in its kinetic energy. एक फॉर्मूला लिख लेना. किसी भी क्वांटिटी में अगर सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? if momentum of a body is increased by 50%, find percentage change in its kinetic energy. ये था ना क्वेश्चन. फॉर्मूला बता रहा हूँ. परसेंटेज जब भी निकालोगे चेंज, फाइनल बाय इनिशियल -1 × 100 कर लेना. एनी क्वेश्चन whenever you want to find percentage change, या इसका फॉर्मूला है फाइनल क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी -1 × 100. अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो इंक्रीज कर रही है क्वांटिटी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है. ठीक है. ट्राई करो कुछ से. हम्म. किस खुशी में जीरो होगा? इनिशियल तुम लोगों P1 ले लो यार. ठीक है. इनिशियल मोमेंटम Pi या P1 ले लो. तो P फाइनल निकालो. परसेंटेज चेंज निकालना तो आता है ना. अगर किसी चीज को तुम 50% से इंक्रीज कर दो कितना हो जाएगा वो? अगर इनिशियल मोमेंटम P है और तुमने इसको 50% बढ़ा दो, अब कितना हो गया? देखो, इन क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम
सपोज मैंने ले लिया पी, पी आई को मैंने पी ले लिया। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम है इसका 50% इंक्रीज, तो पी में 50% ऑफ पी ऐड करना है मुझे। तो पी का 50% कैसे निकलेगा? लाइक दिस। तो कितना हो गया ये? 3p/2। तो वी हैव फाउंड इनिशियल मोमेंटम, पी ले लिया हमने, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन के कैसे निकलेगा? वो निकलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -1 × 100। ऐसे करो। किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज का मतलब है फाइनल बाय इनिशियल -1 × 100। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -1 × 100। अब हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है जो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? के इज इक्वल टू p²/2m। तो हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? फाइनल पी कितना है उसका? 3p/2। तो 3p/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मास थोड़ी चेंज होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, यू वोंट चेंज द मास। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है बात? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, p²/2m। इनिशियल कितना था? मोमेंटम p था। इस तरह से क्वांटिटी यूज करोगे ताकि वो कॉमन टर्म्स आपस में कट जाएंगी जो तुम्हें मालूम नहीं है। तो अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें। 2m कट गया और p² भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 9/2 पर बचेगा। चेंज इन, वो तो पूछा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 9/4 -1 × 100। कितना हो गया ये? 9/4 कितना हुआ? 2.25, है ना? 125%। सिंपल। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ काइनेटिक एनर्जी if kinetic energy of a body is increased, first part, 3 times. If kinetic energy of a body is increased, first part, by 3 times. Second part, increase to 3 times. डिफरेंस हुआ दोनों में? इंक्रीज बाय 3 times, इंक्रीज टू 3 times। पहला पार्ट ये लिखा है इंक्रीज बाय 3 times। सेकेंड पार्ट इज इंक्रीज इज मेड 3 times, लिख लो, इज मेड 3 times। सेकेंड पार्ट है is made 3 times of initial kinetic energy. In both the cases, find percentage change in momentum. In both the cases, find percentage change in linear momentum. हाँ, दोनों में 3 times इनिशियल, मतलब पहले वाले में 3 times is increased by 3 times।
देखो दो चीजें होती हैं, या तो तुमने किस चीज को 3 टाइम्स कर दिया, तो पहले कोई 100 था उसको तुमने 300 3 टाइम्स कर दिया, 300 हो गया। दूसरा तो तुमने उसको 300 से इंक्रीज किया, 3 टाइम्स से इंक्रीज किया। तो अगर वो पहले सपोज 100 था, तो उसमें तुमने उसका 3 टाइम्स ऐड कर दिया, मतलब वो 400 हो गया। बात समझ में आ गई? इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अगर पहला था कि इंक्रीज टू 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम, फाइनल 3 टाइम हो गया, हाँ। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब पहले के था, तो k+3k हो गया। इसमें 3 टाइम्स ये है, बाय ये है। फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, चीटिंग कर लो। इस बार तुम्हें क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना। इनिशियल ले लो फिर के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने के ले ली। तो पहले पार्ट में क्या था? इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इस बार? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा k+3k। 4k हो गया। लेकिन हमें तो मोमेंटम में चेंज निकालना है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? √2 km। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? √2 के की जगह 4 km। ये बात समझ में आ रही है? हमें परसेंटेज चेंज निकालना है मोमेंटम में। पी में निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? PF/PI -1 × 100, ये यूज करोगे तुम। PF/PI -1 × 100। तो फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम है √8 km। इनिशियल मोमेंटम कितना है? √2 km -1 × 100। कॉमन टर्म काट दो, km km कट गया। √8 कितना होता है? 2 √2। 2 √2 बाय √2 - 1 √2 से √2 कट गया। 2 - 1 = 1। 100%। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज 100%, ये है। बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में दिया भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज मेड 3 टाइम्स।
तो बी पार्ट में तुम्हें क्या करना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ले लोगे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 टाइम्स के। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा √2 km, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, के की जगह 3 के आएगा। एंड अगेन यूज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वापस यूज कर लो। क्या आ रहा है? हम्म, ये √3 हो जाएगा। √3 होता है 1.732। हो गया। इतना सिंपल है ना फिजिक्स, करने से पहले हो जाता है। तो ये रिलेशन याद कर रहे हैं ना दोनों। एक क्वेश्चन करो। Mass 10 kg is initially moving with velocity 3 meter per second on a smooth surface. लिखो। A mass 10 kg is initially moving on a smooth surface with velocity 3 meter per second. Is acted upon by a force 30 Newton. Is acted upon by a force 30 Newton in the direction of in the direction of motion. In the direction of motion for 5 seconds. Find displacement. Find displacement of the body, its velocity, initial kinetic energy, final kinetic energy, change in kinetic energy, and the work done. And the work done at the end of 5 seconds. At the end of 5 seconds. करो।
पहले न्यूटन्स लॉ लगा के एक्सेलरेशन निकालो। यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कर लो। वर्क डन कितना आ रहा है? हम्म। First, we use Newton's second law of motion. Acceleration is force by mass, 30 by 10. Acceleration, 3 meter per second square. Then we use v equal to u plus at. Initial velocity कितनी है? 3. a कितना है? 3. टाइम कितना था? 5. 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, यही था. Then we find s by using either third equation or second equation. ut plus half at square. तो s आ जाएगा u is 3 टाइम is 5 हाफ at स्क्वायर. नहीं नहीं, नॉर्मल. तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ गया? 52.5 मीटर. क्यों? 15 तो ये हो गया. 75/2 कितना हुआ? स्क्वायर नहीं किया होगा. तो अब वर्क डन कितना होगा? एफ डॉट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कॉस 0 1 हो गया. फोर्स कितना था? 30. डिस्प्लेसमेंट था 52.5. तो वर्क डन कितना आ रहा है? 15 जूल. दैट इज द वर्क डन. Initial kinetic energy half mu square. Mass is 10, u is 3. This is final kinetic energy half v कितना था फाइनल? 18. 18 स्क्वायर 324. तो फाइनल कितना आ रहा है? And when you find the difference delta k, तो 1620 minus 45, 1575. The change in kinetic energy is coming out to be work done, and that's work energy theorem. अब इसमें थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन में. तो यहाँ पे हमने एक चीज प्रूव की
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो दिस इज फ्रिक्शन ऑल्सो, एंड फ्रिक्शन इज 0.15, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। तो अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में निकालना है, सेम एज बिफोर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन में कर लो, करो। In the above question, the floor is not smooth but has coefficient of friction 0.15. Find everything and work done by friction also. पूरा सेम क्वेश्चन है, बाकी सिर्फ फ्रिक्शन आ गया उसमें। कर लो सॉल्व। सारे आंसर डिफरेंट जाएंगे, सारे आंसर चेंज आएंगे अब। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किया हुआ है ना तुमने, नेट फोर्स कैसे निकालते थे। एफबीडी बना लो इसका, एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग वुड चेंज, मास वही रहेगा बस। जी को 10 ले लो। हम्म। म्यू इंटू एन। हम्म। अब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। म्यू इंटू एन। एन कितना है, एन 10 जी के बराबर है।
एन हो जाएगा 10 G, विच इज 100 N, है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 0.15 × 100, 15 N। तो अब नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन तुम्हारी बनेगी F - F = मास इनटू एक्सेलरेशन। 30 - 15 = 10 A। एक्सेलरेशन आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, 3/2 हो गया। फिर v निकाल लो, v = v + 80 से। u कितना है? 3। a इज 1.5, टाइम इज 5। कितना आ रहा है? 10.5। तो वेलोसिटी इज 10.5। s निकालो। कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? 33 पॉइंट। हम्म। फिर वर्क डन बाय, एक तो फोर्स अप्लाइड से, फोर्स अप्लाइड तो 30 था। 33.75, 30 × 33.75 वर्क डन आएगा। वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड कितना है? 982.5। हम्म। अच्छा, ज़्यादा आएगा, हाँ। ठीक है, ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? 5। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स 15 था एंड डिस्प्लेसमेंट 33.75 था। नेगेटिव आएगा लेकिन ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 551.25 - 506.25। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So now this time if you notice, change in kinetic energy आएगा equal to work done by applied force plus work done by friction। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है 506.25
ये है 1012.5 माइनस 506.25। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो नेक्स्ट क्लास में हम वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम थ्योरम करेंगे। उसका 3 मार्क का डेरिवेशन आएगा, एक कांस्टेंट फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स, और आगे बढ़ेंगे। कोलिजन वगैरह भी कर लेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है अनन्या, रिवाइज कर लेना सारा ये। ओके, एंडिंग द क्लास।